Hello friends, myself Dr. Kirti Shriram Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College Jawar. So friends, I welcome you all for the SY Basic Chemistry Paper 3 and now we will start with our new semester, that is semester 4. So friends, I am very happy and I congratulate to all of you that you have completed successfully your third semester exams. You have also scored very well and now you are very well adopted with this type of teaching and learning method, that is online method. Okay, so here in this semester also I hope that you will also generate your interest for the same and again you will complete this semester also very successfully. So friends, now today we will start with our first unit of semester 4, that is method of separation. Okay, so before that I will like to introduce you the overall syllabus for your semester 4. Okay, so see here in your SY Basic Chemistry paper 3 in semester 4 again you have to learn total 3 units. Okay, so in that first unit is about method of separation. So what is method of separation, what is its significance, that you have to learn in this chapter. So it will also include separation techniques in analytical chemistry, then different type of separation methods based on various characteristic of particular substance. So we all know that the substance have different characteristic like gravity, okay, solubility, volatility, etc. So depending upon that how the separation is carried out, that you have to learn. Then you will be introduced to the new chapters or new topics like electrophoresis, solvent extraction and chromatographic methods. So this will be all about your methods of separation. Then you will have again unit 2, that is instrumental methods. So same type of chapter you have learned in your third semester, but here the next part is here. You have to learn about the potentiometric method, pH metric method and conductometric method. Okay. So how to plot the graphs, how actually the experiment is carried out and how the procedure is carried out for that you have to learn here. Then there will be unit 3, that is statistical treatment of analytical data. So this also there in your semester 3, but again next part is there. So here you have to learn about now indeterminate error. So in your first part you have learned about the determinate error. So here you have to learn about now indeterminate error. Then distribution, then it is about the distribution of the random error, then concept of confidence limit and confidence interval and its computation. Then you have to learn about criteria for rejection of doubtful result, then finally test of significance and then graphical representation of data and obtaining best fitting straight line. Okay, so these are the various topics you have to cover in this particular chapter. So now we will go toward our first unit, that is method of separation. Okay, so friends, we all know about separation. What is the use of separation या फिर separation क्यों करना चाहिए? So whenever you have to carry out the chemical analysis, हम किसी भी चीज़ का chemical analysis करते हैं, मतलब क्या कि we do the quantitative and qualitative analysis. Quantitative मतलब उस particular sample में कितने amount में present है ना, what is the quantity, and then क्वालिटी मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, व्हाट इज़ प्रेजेंट. लेकिन ये सब करने से पहले इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू हैव टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सैम्पल. वेन एवर अ सैम्पल इज़ गिवन टू यू, अगर वो मिक्सचर है तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसे डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाएगा व्हेन इट इज़ इन अ मिक्सचर फॉर्म. बट व्हेन यू सेपरेट इट फ्रॉम ईच अदर, सारे कंपोनेंट अगर मिक्सचर के हम सेपरेट करते हैं, then it is very easy for us to determine its quality as well as its quantity. So for that it is very important to separate the component of the mixture from each other. So that is for your small type of analysis. लेकिन अगर आपको
किसी बिग अमाउंट में या बड़े पर्पज़ के लिए भी एनालिसिस करना है तो उसके लिए सेपरेशन बहुत बहुत ज़रूरी है ना। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन और वी कैन से द यूज़ ऑफ सेपरेशन। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल है, वेन एवर यू वॉन्ट टू ड्रिंक टी, आपको चाय पीनी है तो आप क्या करते हो, फर्स्ट यू प्रिपेयर द टी एंड देन यू सीव इट, है ना, उसको हम छलते हैं, कैसे, विथ यूज़ ऑफ सीविंग। सो उससे क्या होगा, जो चाय पत्ती है वो निकल जाती है एंड देन यू गेट योर टी टू रेडी टू ड्रिंक। तो अगर उसके साथ चाय पत्ती भी आ जाती है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ड्रिंक इट। सो this is the small example that how the separation is important. So same way, same applications are there for the separation in our analytical chemistry. Okay, so whenever you carry out any type of chemical analysis, see the third point. Third point में क्या दिया है कि what is the procedure that we actually carry out in your chemical analysis. जब आपको कोई भी analysis करना है तब आप क्या क्या करते हो। So very first you have to carry out typical chemical analysis steps. Okay, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, we select a method for analysis. हम लोगों को एक particular method select करनी है analysis करने के लिए, है ना। फिर उसके बाद you have to obtain a representative sample from the bulk material. एनालिसिस करना पहले तय करना है, उसके लिए एक मेथड फिक्स करनी है एंड देन यू हैव टू टेक द सैम्पल फ्रॉम योर बल्क। तो हम लोग सैम्पलिंग कैसे करते हैं, सैम्पलिंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, उसमें बल्क मटेरियल के सारे प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए, है ना, ये सब हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में ऑलरेडी देखा है इन सैम्पलिंग मेथड। तो उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वी विल कलेक्ट द सैम्पल, देन व्हाट वी विल डू द एलिमिनेटिंग और एलिमिनेशन ऑफ इंटरफेयरिंग रेडिकल्स और इंटरफेयरिंग मटेरियल। तो सैम्पल जो है उसका डायरेक्ट एनालिसिस हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, बिफोर डैट यू हैव टू एलिमिनेट ऑल द इंटरफेयरिंग कंपोनेंट और इंटरफेयरिंग मटेरियल। सो ये इंटरफेयरिंग मटेरियल दूर करने के लिए या रिमूव करने के लिए ही हमें सेपरेशन टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, यूजिंग द सिलेक्टेड मेथड ऑफ एनालिसिस फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी यू हैव टू एनालाइज योर सैम्पल। तो जो मेथड आप लोगों ने तय की है उसके हिसाब से आपको जो कंपोनेंट आपने सेपरेट किए अभी उसका एनालिसिस करना है। एंड फाइनल स्टेप इज़ ट्रीटिंग द ऑब्टेन डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड एंड ड्रॉ अ मीनिंगफुल कंक्लूजन। एक बार आपका सेपरेशन हो जाए, फिर सेपरेशन होने के बाद भी आपको आंसर नहीं मिलता, देन यू हैव टू ट्रीट योर डेटा विथ स्टैटिस्टिकल मेथड। मतलब क्या है, जो आपको डेटा मिलेगा, वेदर इट इज़ नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड डेटा जैसे कि वॉल्यूमेट्री और फिर ग्रेविमेट्री, है ना, उसके लिए साथ भी आपको कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते, यू हैव टू डू सम स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट विद दैट डेटा। या फिर आप कोई इंस्ट्रूमेंटल मेथड कर रहे हो तो उससे भी जो आंसर मिल रहे हैं उसको प्रॉपरली लिखना है, उससे आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं एंड देन फाइनली यू गेट प्रॉपर आंसर। So this all procedure you have to follow in your analytical analysis, you can say chemical analysis. तो जब आप ये सारे प्रोसीजर करते हो then only you get proper answer. So इस सारे स्टेजेस में आपको समझ में आया होगा कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कैरी आउट सेपरेशन। अगर आप मिक्सचर के कंपोनेंट सेपरेट नहीं करते तो आपको ईजीली कोई भी कंपोनेंट नहीं मिलेगा, उसमें इम्प्यूरिटीज़ रहेगी एंड देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एनालाइज देम फ्रॉम ईच अदर। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सेपरेशन करना। सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेपरेशन। So very few analytical methods are very specific with the given analyte, but for different component of your sample it is very necessary to separate the component from each other and then you have to carry out different methods. So most of the analytical methods are not very selective. They can be used to determine a small group of substance in presence of other. So it is not possible for us to always use the same technique or same method for all type of mixture. तो हर एक कंपोनेंट के लिए हम लोगों को डिफरेंट मेथड यूज़ करनी पड़ती है। जैसे कि मेटल है तो उनको अलग करना है,
नॉन मेटल है तो उनको अलग करना है, अगर कार्बन है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट देनी है। इसीलिए हम लोगों को सेपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो व्हेन यू कैरी आउट द सेपरेशन देन व्हाट हैपन्स, देयर इज़ इंक्रीज चांसेस ऑफ बेटर एस्टिमेशन। अगर आप उसको सेपरेट करते हो तो एस्टिमेट करने के चांसेस बढ़ते हैं एंड also our accuracy also increases for our result. Okay, so every time it is not possible for us that we will carry out the proper separation. कुछ मिक्सचर ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट हो सकते हैं, है ना। सो एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर। अगर आपके पास सिंपल मिक्सचर है, जैसे हम आप लोगों को लैब में देते हैं, है ना, they are very simple mixture and they can be separated from each other very easily. लेकिन एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे सैंपल होते हैं जिनके कंपोनेंट सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। ये हम लोगों को पता है क्योंकि दे हैव वेरी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, उनका साइज़, उनके ऊपर का चार्ज सेम होता है, तो उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। देन व्हाट वी डू सम कंट्रोलिंग मेथड्स। मतलब क्या करना है कि जो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है उनको अगर हम सेपरेट नहीं कर पाते तो हम लोग क्या करेंगे, उनको मास्किंग करेंगे, है ना। मास्किंग मतलब क्या, जैसे अगर हम लोग चेहरे पे मास्क पहन ले तो हमको कोई पहचान नहीं पाएगा, है ना, वी आर टेम्पररीली हिडन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी तरह जो इंटरफेयरिंग कंपोनेंट है आपके मिक्सचर में उनको टेम्पररीली मास्क कर सकते हैं। So there are limitation to maintaining these control condition and most of the time it is necessary to eliminate the interfering substance from each other. So whenever it is not possible for us to separate the mixture of the component, then what we can do, we can mask them, है ना। So the analyte has to be isolated from its matrix and then we can mask or we can hide the interfering radical from each other. So therefore the separation methods are very important in our chemical analysis and also for the obtaining of the data. तो अगर हम लोगों को क्या करना है, we have to estimate the analyte without affecting the separation. अगर कुछ टाइम के लिए सपोज हम लोगों को इंटरफेयरिंग रेडिकल को मास्क करना है या फिर उनको कंट्रोल करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो देर आर वेरियस वेज इन विच एन एनालाइट कैन बी पॉसिबली एस्टिमेटेड विदाउट सेपरेटिंग इट फ्रॉम द इंटरफेयरिंग कंपोनेंट एंड फॉर दैट द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज। मतलब हमेशा, जैसे मैंने पहले ही बोला, इस चैप्टर में हमको क्या सीखना है कि हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेटेड, उनको एक दूसरे से अलग कैसे करना है, वही हम आगे के पूरे चैप्टर में देखेंगे, है ना। लेकिन पहले हम लोग क्या देख लेंगे कि अगर किसी कारण हम लोगों को सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, इफ़ दे हैव वेरी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक विथ ईच अदर एंड सपोज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाय कंट्रोलिंग द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मानो आपको कंपोनेंट सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंट्रोल द पीएच। सो सपोज यू कंट्रोल द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन लाइक द सॉल्यूशन कंटेनिंग बिस्मथ 3+ एंड लीड 3+। ऐसे अगर मानो मिक्सचर है और उसको EDTA के साथ आपको ट्रीट करना है, देन इफ़ यू मेंटेन द pH at 2, then what will happen, only your bismuth will react with EDTA and suppose if it is raised to 6, pH अगर रेज किया 6 तक, तब आपका PB EDTA के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब PB और बिस्मथ, लेड और बिस्मथ का अगर मिक्सचर है तो पहले आपको pH 2 तक मेंटेन करनी है, तो उस तक क्या होगा, ओनली बिस्मथ विल रिएक्ट। तो हम लोगों ने PB को सेपरेट नहीं किया, लीड को सेपरेट नहीं किया, फिर भी वो EDTA के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि pH इज़ कंट्रोल, है ना। और फिर अगर आप pH को बढ़ाते हो 6 तक लेके जाते हो तो क्या होगा, आपका लीड भी रिएक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे ये जो मिक्सचर है लीड और बिस्मथ का, यहाँ पे हमने एक्चुअल सेपरेशन नहीं किया, लेकिन बाय कंट्रोलिंग द pH हम उनको 1 by 1 चांस दे रहे हैं EDTA के साथ रिएक्शन करने के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड। देन सेकंड मेथड इज़ यूज़ ऑफ मास्किंग एजेंट। जैसे मैंने बोला
कि अगर आपको सेपरेशन, एक्चुअल सेपरेशन करना पॉसिबल नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ मास्किंग एजेंट। जैसे कि सपोज देयर इज़ मिक्सचर ऑफ फ्लूराइड एंड साइनाइड, है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन मास्क वन ऑफ देम एंड देन यू विल मेक द अदर टू रिएक्ट। तो दोनों में से एक को आपको सर्टन केमिकल एजेंट यूज़ करके मास्क करना है, तब तक दूसरा रिएक्ट करेगा, फिर आपको दूसरे को मास्क करना है, फिर पहला रिएक्ट करेगा। सो दिस वे यू कैन यूज़ द केमिकल मास्किंग एजेंट। देन थर्ड इज़ काइनेटिक मास्किंग। काइनेटिक मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन, है ना। तो अगर आपको एक्चुअल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करोगे, यू विल यूज काइनेटिक एजेंट एज अ मास्किंग एजेंट। मतलब क्या कि हमें पता है कि हमेशा सेम चीज़ जो है वो रिएक्ट नहीं करती एक ही टाइम पे, तो सम टाइम वन विल रिएक्ट एंड आफ्टर सम टाइम सेकंड विल रिएक्ट विथ योर सॉल्यूशन। सो सेम वे काइनेटिक मास्किंग मतलब टाइम के गैप के साथ किसी के साथ रिएक्शन करना। एंड द लास्ट वन इज़ क्रोमेटोग्राफिक मेथड। सो क्रोमेटोग्राफी इज़ वेल नोन मेथड। हियर व्हाट यू हैव टू डू, सपोज यू हैव टेकन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मिक्सचर। आपके मिक्सचर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, लेकिन उनको आपको एक्चुअली सेपरेट नहीं करना है। पर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में चाहे आप लोग पेपर यूज़ कर रहे हो या क्रोमेटोग्राफिक प्लेट यूज़ कर रहे हो, इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन योर सैम्पल एज वेल एज योर सॉल्वेंट। फिर उसके लिए सेपरेशन के लिए कितना टाइम मैटर करता है, फिर सेपरेटिंग जो आपका पेपर है या प्लेट है उसके कंपोनेंट इसके ऊपर डिपेंड करेगा। मीन्स इन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक ऑल्सो यू डोंट हैव टू सेपरेट द कंपोनेंट, एक्चुअली वो पेपर अपने आप उन कंपोनेंट को सेपरेट करेगा। ओके, सो दिस इज एक्चुअल मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सो दिस वे, by these four method you don't have to separate the method or component actually, वो एक साथ ही रहते हैं, लेकिन by the time gap और by using masking agent वन बाय वन वो रिएक्ट करते हैं, है ना। तो ये तो हो गया विदाउट एक्चुअल सेपरेशन। लेकिन जब आप लोग एक्चुअल सेपरेशन करते हो कंपोनेंट का तो वो किस तरीके से करते हैं एंड हाउ डिफरेंट मेथड्स आर यूज, दैट वी विल सी in our next lecture. Till that, you take care and stay safe. Thank you.